whenever there is sand or above the dredge line and below the dredge line, this is the pressure diagram for this is the pressure diagram for cantilever sheet pile wall. This much you remember, no derivation or problems on this one. So when you comes to the second part, so here we do by approximate analysis, and this is the approximate analysis. So what we assume that to the left hand side there is totally passive pressure below the dredge line, and to the right side below the ground level we take totally active pressure. Totally active pressure. So we take the moment of active pressure and passive pressure at point here and equate the forces and solve and get the value of D. Such two problems also I solved. Such two problems also I solved. So now next comes the what I did is clay. Regarding clay, I told you in the next studies class. So what I told you, cantilever sheet pile when there is clay above the dredge line and below the dredge line. Just to remember the formula, that's all. How it comes, all these are not that much important. So now this is the minus 2c. How it comes, this I told you, kpka becomes 1 because phi is 0, and when kpka becomes 1, so this is the formula you learned in shear strength. So we'll get sigma minus 2c, but as there is no depth, so no sigma gamma d, so sigma is 0, so minus 2c. At this point it is minus 2c, and at this point it is gamma minus 2c or gamma h minus 2c. That is sigma minus 2c or gamma h minus 2c at this point. And here it comes 4c minus q, and here it comes 4c plus q, and you draw like this. Q is nothing but gamma into d. So remember, just to remember, this is the pressure diagram. This is the pressure diagram for cantilever sheet pile in cohesive soil, where above the dredge line is also cohesion and below the dredge line is also cohesion. But when this is the formula, when that is C5 soil is there, means above the dredge line backfill is here it is sand and below clay is there. तो क्ले का जो डायग्राम है क्ले का आता, ऊपर सैंड का ऐसा आता. तो दिस इज द केस वेयर कैंटिलीवर शीट पाइल above is what it is sand and below is the clay. ऐसे 5 या 6 डायग्राम्स है, आपको डायग्राम से याद रखना है. और कोऑर्डिनेट क्या आता है, जैसा कि कोऑर्डिनेट यहाँ पर है -2c, यहाँ तो 0 रहेगा. यहाँ पर क्या आता, यहाँ पर गामा h -2c, लेकिन यहाँ पर ka गामा h आता. ऐसे ये यहाँ पर 4c माइनस क्यू, यहाँ पर 4c प्लस क्यू, नीचे क्ले है सेम आता. तो कोऑर्डिनेट क्या आते, हर एक केसेस क्या है अलग अलग, और प्रेशर डायग्राम कितना है उतना याद रखो. उसके बाद मूवमेंट लेने के बाद सॉल्विंग फॉर z you will get z bar is equal to this much. And one more little bit I will things I will show you here. Okay, so z bar you will get, and after taking moments all these things, this formula you will get. Just to remember this formula, you solve and you will get the answer. Just you remember the diagram and remember this formula. One problem I will solve. These problems are for your syllabus, whereas the first case was not there. First case was not there. So d square 4c minus q minus 2d ra minus ra into 12, whatever this is the lengthy formula is there, you remember this formula. You remember this formula, you will come to know. And the question is here, the question is this one. Compute the, take down this question please, we will solve this one. So what we are solving is, we are taking a case of cantilever sheet pile wall, where above the dredge line what is there, sand is there, and below the dredge line clay is there. तो अब तक हम कैंटिलीवर शीट पाइल कर रहे हैं, 3 टाइप्स की प्रॉब्लम्स करें, 3 टाइप के केसेस करें. पहला केस क्या है, ऊपर सैंड नीचे सैंड, लेकिन ऊपर सैंड नीचे सैंड के प्रॉब्लम्स आपको नहीं है, बाय अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है. अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के 2 प्रॉब्लम मैं कर चुका हूं. उसके बाद क्ले, ऊपर क्ले और नीचे क्ले. ऊपर क्ले और नीचे क्ले का मैं आपको फॉर्मूला बता चुका, प्रेशर डायग्राम बता चुका हूं. -2c आता, नीचे 4c माइनस क्यू, 4c प्लस क्यू.
उसी तरह नाउ देर इज ऊपर क्ले, ऊपर सैंड है और नीचे क्ले है, उस टाइप का एक प्रॉब्लम करेंगे हम. Compute the embedded length D for the sheet pile wall shown in figure. That figure I will show you. Here everything is given. K is K dash is 1 by 3, Kp is 3 because you know the formula. Phi दिए सो रहता है आपको. K is given by 1 minus sin phi divided by 1 plus sin phi and Kp इसका उल्टा हो जाता. If you get K as 1 by 3 means Kp is 3 and gamma dash is given by 20 minus 9.81 or 20 minus 10. This you will get Q 18 into 3, 10.19 into 3, it is 84.6. How it comes, I will show in the problem. So now इतना problem आप लिख लो. तो मैं आपको इतना लिख लो, 2 मिनट टाइम देता हूं मैं. I will go for the next question. I mean same question in detail I will do. 2 minutes time I will give you. Please do it. Take down this question. Oh, yes. Okay, this is the question which I am going to solve. A question I give you. So this is the case where there is sand above the dredge line, below it is clay. So this one is going to be the diagram surely. This is the diagram. This is the question. So question क्या है देखो, 3 मीटर तक क्या है, फिर यहाँ पर ड्राई है और 3 मीटर पानी है और ये सारा सैंड है और नीचे क्ले है. क्ले के प्रॉपर्टीज है C इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. C is equal to 50 kilonewton per meter square और यहाँ गामा सैचुरेशन 20 kilonewton per meter cube. Phi is 30 degrees. Phi is 30 degrees. इस ड्राई है 3 मीटर तक, गामा है 18. तो इसका डायग्राम ऐसा बनता है. देखिए जो ड्राई है उसके लिए ट्रायंगल, फिर थोड़ा एक्सटेंड हो जाता और ये आपका ये डायग्राम अबव द सैंड और ये बिलो द सैंड क्लियर रहने से दिस इज 4C माइनस क्यू, दिस इज 4C प्लस क्यू. और यहां पर गामा डी कैसा आता, दैट जस्ट आई शोन यू, दैट इज 18 इंटू 3 गामा इंटू 3, 18 इंटू 3, ये 20 माइनस 10, 10 इंटू 3 या 20 माइनस 9.81 करो. तो ये सब करने के बाद मैं आपको लिख लेने के लिए बोला था 84 पॉइंट समथिंग यू विल गेट इट एंड दिस इज द डायग्राम. So what he did is he has found RA here. RA means it acts like this, the total force, total pressure because of this triangle and this trapezoidal. How he has found? He have to find area of this everyone. So at the base this is given by Ka gamma H. This base is given by Ka gamma H and Ka gamma H कैसा आता आपको मालूम है 1 by 3 into 18 into 3, 3 get cancels. So this is 18. This base is 18. Base कैसा आता है 18? Ka gamma H. So Ka is 1 by 3, gamma is 18 into 3 height. तो कट होके ये बेस 18 बनता. तो इस ट्रायंगल का प्रेशर बनता हाफ इंटू 18 इंटू 3. ये मालूम हुआ क्या देखो आपको. फिर this trapezoidal is divided into 2 parts. So this height is for 3 meters, 18 is the base, so that is 18 into 3. And for this one the base is 10.19 because this is again Ka gamma dash H. Ka is 1 by 3, gamma dash is 10.19 into H is 3, 3 get cancelled, this is 10.19. So pressure because of this is half into 10.919 into 3. So if you simplify all these you will get 96.3. So total RA is 96.3. Please इसमें कुछ डाउट है तो पूछो. ये है प्रॉब्लम आपका, ये है प्रेशर डायग्राम. चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं. एंड दिस इज द आर ए. ये आर ए कैसा आया ये आपको मालूम होना.
ये आपको सब क्लियर है, फॉर्मूले थोड़े याद रखे तो बहुत इजी है ये क्वेश्चंस। ऐसा एक डायग्राम दे सकता है आपको एमसीक्यू में, व्हाट इज द आरए, ही मे आस्क यू। सो प्लीज गो थ्रू दिस डायग्राम, and if you have any doubts regarding RA, you can ask. RA means what is the total pressure above this dress line. This is because of this triangle, because of this rectangle, and because of this triangle. Because of this triangle, it is half into 18 into 3. अब बोलेंगे सर 18 कैसा आया? 18 इसका बेस है। बेस कैसा आया? के ए गामा एच। के क्या है? 1/3 गामा 18, हाइट 3 है, 3 गेट कैंसिल्स, तो 18 बेस बनता है इसका। एक बार बेस 18 बन गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज द प्रेशर, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू 18 इंटू 3। दिस इज फॉर दिस ट्रायंगल, and for rectangle it is 18 into 3, and for this triangle half into 10.19 into 3, and if you take sum of all these it is 96.3, 96.3, 96.3। आया क्या? यहाँ पर आ रहे समझ में आया क्या आपको? उसके बाद वाई बार मैं निकालता हूं। वाई बार मतलब यहाँ ड्रेज लाइन से कहां पर एक्ट करता, दैट इज वाई बार। ये कहां पर एक्ट करता ड्रेज लाइन से, वो निकालना है हमको, तो हम बाद में निकालेंगे। पहले आप ये बोलो मुझे आ रहे समझ में आया क्या? चैट बॉक्स में लिखो, इफ इट इज यस आई विल गो फर्दर। थोड़ा मुश्किल लगता है शुरू में आपको, हर केस का एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करे, प्रेशर डायग्राम बनाए, कोऑर्डिनेट्स देखिए, तो बहुत इजी है, नॉट दैट मच डिफिकल्ट। Okay, further I go you. Now I will find RA. RA is 96.3. So RA will act from some distance at the dredge. That distance you have to find. It is called Y bar. It is called Y bar. How to find Y bar? How to find Y bar means taking moment about this point. And taking moment about this point is given by RA into this Y bar. That is RA into Y bar. So Y bar is equal to RA, डिनोमिनेटर में आता। देन ये तीनों ट्रायंगल के फोर्सेस ले लो, तो पहला का फोर्स है 27 है, कैलकुलेशन करें। ये एक्ट क्या करता है? ट्रायंगल का सीजी कहाँ रहता है? h/3 फ्रॉम बेस, तो यहां से यहाँ तक 3 और ये 1, 3/3 4, सो 27 इंटू 4। और सेकेंड रेक्टेंगल, इसका फोर्स कितना है? 54। ये एक्ट कहां पर करता है? सेंटर में, हाइट 3 है, सेंटर मतलब 1.5, सो 54 इंटू 1.5। तीसरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का h/3, हाइट इज 3, 3/3 1, so it is 15.3 into 1, so y bar is equal to 27 into 4 plus 15 into 1.5 plus 15.3 into 1 divided by 19.63 करो, 2.12 meter. So y bar is acting, that is RA is acting at a distance of 2.12 meter from base. So RA is acting at a distance of 2.12 meter from base. Got it? कुछ RA और Y bar क्लियर है तो डायरेक्टली यू आर हैविंग वन फॉर्मूला हियर, d स्क्वायर इज इक्वल टू 4c माइनस क्यू माइनस 2d RA। RA इंटू ये फॉर्मूला याद रखो, इसमें हर चीज मालूम है आपको। अब आप पूछेंगे सर RA निकाले, सो d तो हमको फाइंड आउट करना है, क्यू क्या है? क्यू मैं इससे पहले निकाला आपको, यहाँ पर कितना प्रेशर आ रहा, तो ये 18 इंटू 3 प्लस समथिंग 20 माइनस 9.81 इंटू 3 करा था मैं, तो वो आपके पास है क्यू, तो 84.6 है। 4 इंटू 50 माइनस 84.6 है। आरए का वैल्यू मालूम है, या वाई बार का वैल्यू मालूम है, एवरीथिंग इज नोन। सो इफ यू simplify, you will get an equation like this: d square minus 1.76 66d minus 6.19 equal to 0. That is d is 3.46. This is a simple quadratic equation, और हम एक्स्ट्रा 30% अमेंडमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो 3.46 का 30% एक्स्ट्रा मतलब 1.3, तो फाइनल आंसर डी इज 4.5। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको डायग्राम डालने आना, क्यू निकालने आना, आर ए निकालने आना, वाई बार निकालने आना, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना, बाकी का काम कुछ नहीं। तो ये बहुत सिंपल है,
ये सबसे मतलब इससे तो और सिंपल आगे के प्रॉब्लम, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम किसका है, ड्रेजलाइन के ऊपर सैंड है, नीचे क्ले है, तो प्रेशर डायग्राम ऐसा बनता। क्यू निकालो आप, उसका आर ए निकालो, वाई बार निकालो, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, and from that quadratic equation you will get rest of the things. Please, if you have any doubts you can ask me. If you have any doubts you can ask me now. Clear the things? तो ऐसे ही प्रॉब्लम रहते हैं, लेंदी तो इतने बड़े प्रॉब्लम नहीं पूछ सकता उन्होंने, एक डायग्राम देके डायग्राम बनाओ बोलता, या आर ए निकालो बोलता, या क्यू निकालो बोलता, या व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ इसका ऑर्डिनेट कितना है 4c माइनस क्यू बोलता, ऐसा कुछ भी बीच के चीजें पूछ सकता है एग्जाम के लिए। So please go through this, and if you have any doubts please ask me. If you have any doubts regarding diagram, आपको क्या है, सबसे पहले डायग्राम करना है, उसके बाद क्यू निकालना है, उसके बाद आर ए निकालना है, उसके बाद वाई बार निकालना है, और फॉर्मूला आपके पास रेडीमेड है। कैसा है फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं पीछे के डिराइवेशन में, डेरिवेशन नहीं किया मैं, इट इज नॉट नेसेसरी, जस्ट टू रिमेंबर द फॉर्मूला, यू सब्स्टिट्यूट देयर इटसेल्फ, यू विल गेट द आंसर। सो डी इज 3.46, generally we increase it by 30 to 40%. So if you increase by 30%, so multiply by 1.3, so you will get 4 point something, 4 point something, and tell me the answer. ओके, क्लियर द थिंग्स, कुछ डाउट नहीं है ना, क्या सुन रहे नहीं? इट्स योर थिंग। तो एक प्रॉब्लम किया मैं, कौन सा था प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कैंटिलीवर शीट वाइल वॉल, ऊपर सैंड था नीचे क्ले था। क्ले का भी फॉर्मूला बताऊं, क्ले का प्रॉब्लम मैं आगे करता हूं, और ऊपर सैंड नीचे सैंड में वो आपको अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है, वो तो बहुत इजी था। ओके, इसके प्रॉब्लम हो गए। सो आई विल गो फॉर नाउ नेक्स्ट केस। तो नेक्स्ट केस में क्या होता मालूम है अब, तो नेक्स्ट केस के बारे में बताऊंगा मैं आपको। सो नेक्स्ट केस में क्या आता होता, सो अब हम दो मेथड्स है, मैं क्या बोला आपको, दो मेथड्स है। एक मेथड कौन सा, कैंटिलीवर शीट पाइल वॉल, दूसरा एंकर्ड बल्क है, एंकर्ड शीट पाइल वॉल। तो कैंटिलीवर में तीन केसेस है, कैंटिलीवर में तीन केसेस है। कौन सा केसेस है, तीन अलग अलग, या मैं अलग से प्रेशर डायग्राम बनाऊं। ये है सैंड सैंड, ऊपर सैंड नीचे सैंड, लेकिन आप इसका सिर्फ प्रेशर डायग्राम याद रखो, दैट इज इनफ फॉर यू सिलेबस में, इसके प्रॉब्लम मत करो। लेकिन सैंड सैंड के अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऐसा रहता, ये पीए और पीपी, इसका फोर्स निकालो, इसका फोर्स निकालो, यहां पर मूवमेंट ले लो, इक्वेट करो, यू विल गेट इट। इस टाइप के प्रॉब्लम मैं आपको बताया, इस टाइप के प्रॉब्लम मैं आपको बताया। उसके बाद कैंटिलीवर में ऊपर क्ले नीचे क्ले, उसका डायग्राम ऐसा रहता। इसका प्रॉब्लम नहीं बताया मैं आपको, बताऊंगा आपको मैं, कोई उतना मुश्किल नहीं है। जैसा आपको अगला ये प्रॉब्लम आया तो ये अपने आप आता, तो इसका प्रॉब्लम भी मैं आपको दूंगा, एक तो होमवर्क दूंगा या आपको करने लगाऊंगा। तो ये ऊपर क्ले नीचे क्ले, आपको सिर्फ डायग्राम याद रखना है, हर जगह कोऑर्डिनेट निकालना है, जो फॉर्मूला मैं दिया आपको उसमें सब चूट करना है। लेकिन ये जो केस है कैंटिलीवर का,
ये कैंटिलीवर में ऊपर सैंड और नीचे क्ले, दिस इज द कॉमन केस, ऊपर सैंड और नीचे क्ले, इसके प्रॉब्लम पूछता, और इसका प्रॉब्लम मैं अभी आपको सॉल्व करके बता चुका हूं, मैं आपको सॉल्व करके बता चुका हूं। ओके, तो ये डी निकालना है आपको। कैसा निकालना, पहले क्यू निकालो, फिर आर ए निकालो, फिर वाई बार निकालो कहां पर एक्ट करता, उसके बाद डी स्क्वायर माइनस समथिंग अ फॉर्मूला इज देयर, यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला, यू सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज देयर, यू विल गेट इट। तो ये 3 केसेस मैं आपको बता चुका हूं। अब हम जाएंगे अगले मेथड को, दैट इज कॉल्ड फ्री अर्थ मेथड और एंकर्ड शीट वॉल। तो यहां पर क्या लगते हैं, मैं आपको वीडियोस में भी बताया था, एक एंकर रॉड लगा देते हैं, और एंकर रॉड लगाने से फायदा क्या होता, यहाँ ड्रेज लाइन के नीचे इस तरफ कोई भी प्रेशर डेवलप ही नहीं होता, क्योंकि ये ऊपर इटसेल्फ ये सारा प्रेशर ये ले लेता। तो ऐसा लेने से ये डायग्राम ऐसा चेंज होता, ऊपर तो वैसा ही रहता, अब जैसा आप करे थे ऊपर वैसा ही रहता, नीचे पैसिव प्रेशर क्या हो जाता, यहां से चेंज होके ऐसा हो जाता। So this is the diagram for sand when anchor rod is provided. Please लिख लो, 2 मिनट टाइम देता हूं मैं आपको। तो प्रेशर डायग्राम क्या होता, राइट हैंड साइड में पैसिव प्रेशर कुछ नहीं आता, एंकर रॉड लग जाता है यहाँ पर। एंकर रॉड क्या हाइट पे लगता है वो सब हम बाद में देखेंगे, अगर से वाटर टेबल है तो ऐसा आता, नहीं तो एक ट्रायंगल आता ऊपर से। तो ये आप डायग्राम दिमाग में रख लो, इस तरफ पैसिव है, इस तरफ एक्टिव है। तो एंकर रॉड आने से और इजी होगा आपको, इस तरफ पैसिव प्रेशर आ रहा ही नहीं, पैसिव प्रेशर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा। Okay, so now what is this method is called free earth method। ये फ्री मेथड अर्थ मेथड क्या है, फिक्स्ड अर्थ मेथड क्या है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिक्स्ड अर्थ मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको इतना ही रखना है, एंकर्ड बल्कहेड हम डिजाइन कर रहे, बल्कहेड में शीट पाइल, तो एंकर्ड वॉल यहाँ पर लगा रहे। वहां पर कैसा था, अब तक जो करे हम, वो कैंटिलीवर शीट पाइल वॉल था। कैंटिलीवर शीट पाइल वॉल मतलब क्या था, कि सारा यहाँ डेज लाइन से ही वो होल्ड होता था। यहाँ पर ऐसा नहीं, हम एंकर रॉड लगाते, एंकर रॉड लगाने से यहाँ प्रेशर कम आता है नीचे, तो इस तरफ पैसिव प्रेशर डेवलप ही नहीं होता। एन एंकर्ड बल्कहेड इज द वन व्हिच इज हेल्ड अबव इट्स ड्रिवन डेप्थ बाय वन और मोर द रॉड्स और एंकर्स एट और नियर इट्स टॉप, या तो पूरा टॉप में देते या नियर द टॉप में देते। The design of anchored bulkhead consists of the determination of length of embedment, the magnitude of the tensile force, or design of the section of the ship, ये सब तो हम करेंगे। So these can be done by 2 methods, one is free earth support method, another is fixed earth support method। ये free earth method क्या है, fixed earth method क्या है, मैं आपको बताऊंगा बाद में, उसकी आप फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। तो नाउ व्हेन वी कम फॉर फ्री अर्थ मेथड, सो दिस इज द प्रेशर डायग्राम। सो इसमें हम कुछ assumptions करते हैं। व्हाट आर these assumptions, I will tell you। The sheet pile is perfectly rigid as compared to the surrounding soil, means this sheet pile wall is assumed as perfectly rigid, मतलब इसमें कोई movement नहीं हो रहा। The sheet pile is free to rotate at the anchor rod level with failure occurring by rotation about the anchor rod। The sheet pile anchor rod में rotate हो सकता है, ये मान के चल रहे हैं। The sheet pile is free to rotate at the anchor rod level with failure occurring by rotation about the anchor rod। The active and passive soil pressure acting on the sheet pile may be computed by Rankine's theory as their distribution is hydrostatic। So these are the assumption we make। So you remember this assumption, this may be asked in the MCQs। And this is the diagram for granular soil, that is above the dredge line is also sand and below the dredge line is also sand। तो ये डायग्राम याद रखो। देखिए इसमें और कैंटिलीवर में क्या फर्क है, कैंटिलीवर का डायग्राम यहाँ पर है मेरे पास, तो इसमें उसमें क्या फर्क है,
यहां पर क्या कर रहा हो, यहां तक आने के बाद डायरेक्टली यहां जा रहा, ये पोर्शन नहीं आ रहा, दिस पोर्शन इज मिसिंग, मींस यहां पर पैसिव प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा, जिससे हमारा कैलकुलेशन और इजी हो जाता, जिससे क्या हो जाता, हमारा कैलकुलेशन और इजी होता। तो ये एंकर रॉड है, ये टोटल हाइट h है अबव द ड्रेज लाइन, ये स्मॉल h है, हाँ ये स्मॉल h है, एंकर रॉड का हाइट फ्रॉम द ड्रेज लाइन, ये आरए है, आरए मतलब ये प्रेशर और ये प्रेशर, ये आपको निकालना है, आरपी है, आरपी मतलब ये प्रेशर आपको निकालना है, ये टोटल डेप्थ डी है, ये यहाँ जहां पर वाटरिंग हो रहा है ये ए हाइट है स्मॉल, और ये वाई डैश है, वाई डैश को कैसा निकालना, y1 कैसा निकालना, वो सब तो मैं आपको बताते जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, लेट एफ इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स इन द एंकर रॉड, देखिए ये सारा प्रेशर इस तरफ आ रहा, एंकर रॉड इसको होल्ड कर रहा, तो इस प्रेशर के अपोजिट में जो एक्ट करता pressure, that is the total force in the tensile force in the anchor rod is given by Fa. Ka and Kp dash are the coefficients based on phi dash, you know that, and K dash is equal to Kp dash minus Ka dash. Ka dash is given by 1 minus sin phi divided by 1 plus sin phi, and Kp dash is given by reverse of this one. A is equal to depth of point of zero pressure, means यहाँ पर ना ही एक्टिव है ना ही पैसिव है, यहाँ एक्टिव से पैसिव की तरफ चेंज हो रहा है, एक्टिव से पैसिव की तरफ यहाँ पर चेंज हो रहा, ये पॉइंट O है। इफ Pa is the active pressure intensity at the dredge line, we have Kp minus K dash, dredge line पे जो हम Pa dash ले रहे हैं, ये कैसा कैलकुलेट करते हैं, Kp dash minus K dash into A into gamma dash, तो A into gamma dash, तो इस फॉर्मूले से हम करते, तो A is given by this formula, A is given by this formula, Ra is active pressure acting at y1, Rp is passive pressure acting at y2, and this is the equated, y1 into Ra is equal to y2 into Rp, Rp के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इसको सिंप्लीफाई करो, so you will get the equation, you have to remember this equation, that's all. You have to remember this equation, that is y cube into gamma dash k dash by 3 plus y square into gamma dash k dash by 2 into h plus a minus ra into y1 equal to 0. मोमेंट लेना, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, हर एक में आपको इतना याद रखना है कि प्रेशर डायग्राम कैसा बनता और ये इक्वेशन क्या है। उसमें भी हम इक्वेशन पिछले केस में करे थे कैंटिलीवर में, एंकर्ड रॉड का इक्वेशन है, और एंकर्ड रॉड के इक्वेशन के लिए ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला, दिस मच ओनली यू शुड रिमेंबर, दिस मच ओनली यू शुड रिमेंबर। पूछो, कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, यहां तक एटलीस्ट बेसिक आइडिया तो होना है, इतना आसान नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, हर एक केसेस के 4-4 5-5 प्रॉब्लम करना पड़ता है, लेकिन क्या ये अब आपको मैं ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए भी नहीं करा रहा हूं, आपको बेसिक आइडिया तो बस है, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न एमसीक्यू है, और एमसीक्यू में इतने डिटेल लंबे प्रॉब्लम्स तो आपको देने वाला है नहीं, बीच के कुछ तो ए क्या है, आर ए कैसा निकालते, क्यू कैसा निकालते, एक प्रॉब्लम भी आप डिटेल में समझ गए ना, तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो थिंग्स आर क्लियर नाउ, once again I will tell you, ये डायग्राम याद रखो, एंकर रॉड आने से इधर पैसिव प्रेशर नहीं बनता, डायग्राम और इजी होता, ये आरए मतलब यहाँ पर जितना यहाँ पर जो एक्टिव प्रेशर आ रहा उस आरए को निकालना, कैसा निकालना एक प्रॉब्लम करके बताता हूँ मैं आपको, पीए डैश मतलब यहाँ बेस में आता, पीए डैश में कैसा निकालना मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद आरपी ये पैसिव प्रेशर टोटल, ये तो बहुत सिंपल है, इसका एरिया निकालो, ये ट्रायंगल का बस है, और ये बेस जो रहता K dash gamma dash y रहता, y is the height of this triangle, d is the total depth of amendment, d is the total depth of amendment, तो ये सब वैल्यूज निकालना है, ये और a इस फॉर्मूले से निकालना है,
पी ए डैश कैसा निकालते हैं सब मैं आपको बताता हूं। तो ये निकाल के सब सिंप्लीफाई करें तो यू विल गेट दिस इक्वेशन, you will get this equation, that is y cube gamma dash k dash by 3 plus y square gamma dash k dash by 2 into h plus a minus r a into y1 and this equal to 0, d is equal to y plus a, वो सब तो हम बाद में करेंगे। सो एफ ए भी कैसा निकालते हैं मैं बाद में बताता हूँ। तो ये डायग्राम आपको क्लियर रहना when it is sand above the dredge line is also sand, below the dredge line also is sand, but the only difference here is it is the एंकर रॉड मेथड। तो एंकर रॉड में और कैंटिलीवर में फर्क क्या है, इस साइड में एंकर रॉड में पैसिव प्रेशर आता ही नहीं, ये मेजर डिफरेंस याद रखो आप। जब भी एंकर रॉड हम लगा के यूज करते तो पैसिव प्रेशर यहां पर आता ही नहीं, पैसिव प्रेशर यहां पर आता ही नहीं। तो पैसिव प्रेशर जो भी है इस तरफ ही रहता। तो वहां पर क्या होता था कैंटिलीवर में, ये पैसिव प्रेशर इस तरह आता था। और जरा डायग्राम याद रखो आप, कोऑर्डिनेट्स याद रखो, एक एक फॉर्मूले याद रखो। That is enough for you people. That is enough for you people. That is enough for you people. कुछ डाउट है तो पूछो। 2 minutes time I will give you. ठीक है, डायग्राम क्लियर है। इसके बाद प्रॉब्लम करता हूं मैं। अब ये एक बार डायग्राम अच्छी तरह देखो, एक बार और मैं अलग अलग डायग्राम आपको बताऊं मैं। देखिए पहले करे थे हम कैंटिलीवर, कैंटिलीवर में ये है सैंड सैंड का डायग्राम, इतना नीट नहीं है, आप बुक से देख सकते हैं। ये सैंड सैंड का प्रॉब्लम, लेकिन इसका सिर्फ डायग्राम याद रखो आप, इसका कोई भी डेरिवेशन मतलब प्रॉब्लम नहीं पूछता। लेकिन सैंड सैंड में कैंटिलीवर में अप्रोक्सीमेट एनालिसिस से पूछ सकता, और यही पूछता मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट एनालिसिस से पूछता है। पीए कैसा निकालना, यहाँ कैसा निकालना है, दोनों को इक्वेट कैसा करना, इसके 2 प्रॉब्लम मैं आपको करा चुका हूँ, ये कर लो। उसके बाद कैंटिलीवर में ही ऊपर क्ले नीचे क्ले, ऊपर क्ले नीचे क्ले है, तो ये है डायग्राम, और यहाँ पर ये है -2c, ये 4c माइनस क्यू, और ये ऑर्डिनेट है गामा डी -2c, और ये है 4c प्लस क्यू, ये 4c माइनस क्यू। इसका इक्वेशन याद रखो, और ए भी पूछता। और कैंटिलीवर में ही हम करे थे ऊपर सैंड और नीचे क्ले, ये डायग्राम बनता, इसका इक्वेशन बताता। एक प्रॉब्लम मैं आपको करा चुका हूं। तो ये सभी हो गए कैंटिलीवर के अलग अलग केसेस, 1 2 3 4। ये प्रेशर डायग्राम याद रखो, करस्पॉन्डिंग फॉर्मूले याद रखो, और उनके कोऑर्डिनेट्स याद रखो। इसके बाद मैं अभी स्टार्ट किया कैंटिलीवर शीट वॉल, नहीं कैंटिलीवर नहीं, क्या बोल रहा था मैं आपको, एंकर रॉड शीट वॉल, एंकर रॉड शीट वॉल। कैंटिलीवर में एंकर रॉड है, और एंकर रॉड में क्या हो जाता, इस तरफ का पैसिव प्रेशर पूरा नलीफाई हो जाता, ये 0 हो जाता, और ये 0 होने से डायग्राम ऐसा बनता। यहाँ पर एक ऐसा आता था, वो नहीं आता, बस वही डायग्राम है। बाकी के सब आर ए निकालो, आरपी निकालो, y1 y2 क्या है, ये प्रॉब्लम आप करने से मालूम होता। यहाँ पर उसके बाद a इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखो, पी ए डैश बाय गामा डैश के, और उसके बाद a एक फॉर्मूला याद रखो, ये 2 फॉर्मूले याद रखो। हम एक प्रॉब्लम करके बताता हूं मैं आपको, इट विल बी इजियर फॉर यू, इट विल बी इजियर फॉर यू। सो यू टेक अ ब्रेक ऑफ 2-3 minutes, immediately after that we will join again.